Assalamu alaikum dear students. Hope you are all doing well and staying home. Dear students, welcome back to Zoom online classes. And this is a summary of your first lecture of online class for grade 6. This is your chapter number 11, Industry in Pakistan. We have started this chapter during our regular classes. So we will continue this chapter. Today we will start our lecture with the topic chemicals. Now, what are the chemicals? A chemical is any substance consisting of matter. This includes any liquid, solid, or gas. They can either occur naturally or can be created artificially. Okay, substance is anything which has mass, occupies space. Okay, and the chemicals can be the natural and they can be created in the chemical plants. Okay, now Pakistan has a large amount of simple minerals, okay, which can be turned into different chemicals for different uses in the industries and for the agriculture. ठीक है, केमिकल्स जो हैं तो पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल मिनरल्स जो हैं तो वो पाए जाते हैं जो कि जिनको चेंज किया जा सकता है इनटू केमिकल्स एंड विच आर यूजफुल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. Salt is the raw material for caustic soda and soda ash. Okay, they are essential in many industries, including leather and textile. Salt is found in the salt range. Okay, ये हमारे पास मिनरल है, ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास पाया जाता है इन पाकिस्तान एंड इट इज़ यूज. ओके, इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर कास्टिक सोडा एंड द सोडा एश एंड इट इज़ essential in many. Okay, what are essential? Caustic soda and soda ash are the essential in many industries, including the leather and the textile. The gypsum is also found in Pakistan and it is a very soft white rock. Okay, it is used in the paints, rubber, paper and fertilizer industries. It is also used especially for making the plaster for the walls and the ceilings of the houses. ठीक है, घरों की छतों के लिए प्लास्टर और walls के लिए जो प्लास्टर यूज़ होता है it is also made up of the gypsum. ओके, देयर इज जिप्सम ऑल्सो इन द पेज. ठीक है, ये जो हमारे पास पेजेस होते हैं, पेपर होते हैं, इसमें भी जिप्सम यूज होता है. इट हेल्प्स टू मेक अ पेपर वाइट एंड ओपेक. Sulfur is the base for many industrial processes such as oil refining, paints, fertilizers, dyes and explosive. ओके, सल्फर यूज़ होता है ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल को साफ़ करने के लिए, पेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में एंड इट इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड में ये ज़्यादातर पाया जाता है एंड वेयर देयर इज़ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़. ओके, जहाँ पे वॉल्केनोज ज़्यादा होते हैं दे कैन फाउंड सल्फर कैन फाउंड देयर. Limestone is the most common rock found in Pakistan. Okay, it is found in the Salt Range, the Patwar Plateau and the Margala Hills and much of Balochistan. And the limestone is the basic use of the limestone is that it is the raw material for making cement. Although the raw materials of cement are cheap and plentiful, and its manufacture needs huge amounts of heat. Okay, हमारे पास सीमेंट जो है तो ये बनती है, लेकिन इसके लिए जो है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग ये मीन्स इसको बनाने के लिए जो है तो हमें लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में हमें हीट की ज़रूरत होती है. वी आर हैविंग द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग सीमेंट. ब्रोकन लाइमस्टोन इज़ पुट इनटू द टॉप ऑफ द ह्यूज टिल्टेड स्टील ट्यूब. ठीक है, ये ब्रोकन लाइमस्टोन मीन्स टूटे हुए लाइमस्टोन को जो है तो डाला जाता है इनटू द टॉप ह्यूज टिल्टेड स्टील ट्यूब. ठीक है, ये एक स्टील की ट्यूब होती है, उसमें सबसे पहले इसको डाला जाता है. द ट्यूब टर्न्स राउंड वेरी स्लोली. फिर जो है तो ट्यूब जो है तो बहुत स्लोली जो है तो वो टर्न राउंड करती है. ठीक है, वो मूव करती है राउंड शेप में.
and at the same time a very hot flame rushes up from the lower end of the tube. तो ट्यूब की जो एंड वाली साइड होती है तो वहाँ से जो है तो हॉट फ्लेम जो है तो वो जो है तो रश अप किया जाता है एट द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब, ताकि जो है तो ये लाइमस्टोन को, जो ब्रोकन लाइमस्टोन है तो उनको हीट पहुँच सके. In the intense heat, the limestone turns into lumps of the rocks which will become cement. ठीक है, जब नीचे से ब्रोकन लाइमस्टोन को जो है तो हीट मिलती है तो उससे जो है तो ये जितने भी ब्रोकन लाइमस्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े लाइमस्टोन्स होते हैं, इट विल बिकम द सीमेंट. ठीक है, उस हीट के साथ जो है तो ये क्रश होके बिल्कुल सीमेंट की पाउडर फॉर्म में ये हो जाती हैं. When these rocks reach the bottom of the tube, they are ground to a powder between huge steel rollers. ठीक है, गर्म होने के बाद जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप है उसमें ये होता है कि हमारे पास जो है तो स्टील के रोलर्स होते हैं. ठीक है, जिसमें ये गर्म जो लाइमस्टोन्स होते हैं वो उसमें जो है तो वो क्रश होते हैं स्टील के ह्यूज रोलर्स में, एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू द सीमेंट. फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद. ठीक है, द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स आर फाउंड इन पाकिस्तान, दैट इज द जिप्सम, कोल, गैस एंड एक्सेट्रा. ठीक है, फर्टिलाइजर्स पाकिस्तान के पास जो उसका रॉ मटेरियल है वो भी है, लेकिन फिर भी वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, वी इम्पोर्ट दैम. ठीक है, हम अपनी फसलों को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान को फिर भी जो है तो फर्टिलाइजर्स दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं. Steel, the iron ore and the coal found in Pakistan are not suitable for making steel. So all the raw materials are imported. ठीक है, पाकिस्तान के पास स्टील का जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, आयरन ओर एंड कोल, दैट इज़ फाउंड इन पाकिस्तान, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग स्टील. ठीक है, इसको स्टील बनाने के लिए हमारे पास ये जितना भी कोल और आयरन जो है तो पाया जाता है पाकिस्तान में एज ए रॉ मटेरियल जो है तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग द स्टील. वी हैव टू इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द अदर कंट्रीज फॉर मेकिंग द स्टील. देयर इज़ अ जॉइंट स्टील प्लांट इन पाकिस्तान एट कराची में हमारे पास जो है तो स्टील के डिफरेंट चीज़ें बनाने का जो है तो एक बहुत बड़ा जो है तो प्लांट है. इसके अलावा हमारे पास वी ऑल्सो हैव दिस लेवल ऑफ प्लांट इन ऑल्सो इन टेक्सला. Carpets are the 8th largest export product of Pakistan. ठीक है, पाकिस्तान का जो है तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में कारपेट्स जो है तो 8th नंबर पे है. सम आर मेड इन फैक्ट्रीज बट द बेस्ट वंस आर स्टिल मेड बाय हैंड इन पीपल्स होम. ठीक है, यहाँ पे जो है तो लोग घरों में भी जो है तो कारपेट की बुनाई करते हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान. Sports equipment. Okay, sports goods in Pakistan are made from local wood and leather. Okay, so the local wood and leather that is found in Pakistan, it is very suitable for making the sports goods. And Pakistan is the sports equipment of Pakistan are famous all over the world, especially the football. ठीक है, फुटबॉल जो है तो तकरीबन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चर किया हुआ होता है इट इज़ वेरी फेमस. एंड इन पाकिस्तान सियालकोट इज़ द लीडर इन स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान में जितनी भी स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के जितने भी डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, बट सियालकोट इज़ द लीडर मीन्स के सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है तो हमारे पास सियालकोट के जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर प्लांट्स हैं तो उस सियालकोट में जो है तो इट इज़ फेमस. कॉटेज इंडस्ट्रीज. Now this is a very new word for you people. Okay, the cottage industry is a small industrial unit which the owner and his or her family run themselves. ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री को कहते हैं या घरेलू सनतों को कहते हैं. ओके, इट इज़ ए स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट विच द ओनर, ओके, जो उसका मालिक होता है वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, और उनके साथ मिल के फैमिली के जितने भी मेम्बर्स होते हैं तो ये अपने घरों में छोटे कारखाने लगाते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाते हैं और उसमें मिल के ये काम करते हैं. कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर यूजुअली बेस्ड इन विलेजेस एंड आर ऑफ
ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट। ओके, ज़्यादातर जो है तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है तो गांव के लोग, विलेजेस में ज़्यादातर जो है तो ये बेस करती है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जो है तो फॉलो करते हैं, and it is one of the source of the income for them, and it is also important for the government. Why it is important for the government? Because government जो है तो इससे भी अपना जो है तो एक्सपोर्ट करती है जब डिफरेंट चीज़ें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की, तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ द country. This is all for today. Okay, hope you have understood the lecture. Allah Hafiz. See you in the next lecture.